Hello everyone, welcome back to my channel. This is your host and your host Ankita. So before moving ahead, a small request to everyone that do like, share and subscribe to my YouTube channel as I will be dealing with your and mine PhD journey, that what I have learned during my PhD and how I can help you to understand and to cope with this pressure that you all might feel during the PhD. As I have told you many times, PhD is your own baby, your own journey. सबकी PhD अलग होगी, सब अलग टाइम पे कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दी करेगा, कोई लेट करेगा. Don't feel stress. Don't put any sort of pressure on yourself that यार किसी ABCD की हुई है तो मेरी भी होनी चाहिए. Because जब मैंने PhD स्टार्ट की थी तो मुझसे पहले मेरे दो सीनियर्स की कंप्लीट हो गई थी एंड आई वाज लाइक ओ शिट, मेरी क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है यार, उनकी भी कंप्लीट हो गई. एंड देन माय गाइड टोल्ड मी सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना टाइम है, किसी की जल्दी होगी, किसी की लेट होगी, लेकिन होगी सबकी इफ़ यू डू द हार्ड वर्क. And in my previous video I talked about that how I landed up to my topic of Maternity Benefit Act after struggling with 80 plus topics. So if you want to know my that journey, I will share the link in my description box. Feel free to click on it and see how I concluded the topic that I wanted. So now I'll start the video of after deciding the topic uh, and how I did my synopsis presentation. So मेरा topic decide हुआ around November. So the first thing I did, called my mother and I was super duper excited. I was just jumping, smiling and I was like यार मेरा topic हो गया, अब तो बस मेरी PhD हो गई. और ये सबके साथ होता है कि जब आपका topic decide होता है ना, you feel कि बस मेरी PhD हो गई है, अब I don't need anything. And you feel like some sort of relief because जब तक वो टॉपिक डिसाइड नहीं होता है ना, यू फील प्रेशर बिकॉज आपको ये हर टॉपिक अच्छा लग रहा होता है, आप हर टॉपिक में काम करना चाहते हो, आप ना आपकी डायरेक्शन काफ़ी वेग होती है. ठीक है, जैसे आपका टॉपिक डिसाइड होता है आपको पता चलता है कि आपका अच्छा आपकी ये बात है, आपको इसी बात में चलना है. सो व्हेन आई डिसाइडेड माय टॉपिक ऑन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड दिस वॉज समथिंग अ वेग टॉपिक, लेट मी बी ऑनेस्ट कि मेरे लिए बहुत वेग टॉपिक था. मैंने बस रैंडमली थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आई जस्ट सेड कि सर व्हाई नॉट दिस, एंड ही सेड थिंक ओवर इट एंड देन कम बैक. And the moment my guide said think over it and come back, I just rushed to my laptop and I was like da 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 da, and for straight 2 weeks I just started, and after 2 weeks I went back to him and I said sir ye topic, and he was like nice, it's a technical topic and it is something which has not been done and let's do it. So when I was deciding my topic, what were the four things that I thought? Number one was I was thinking about what my PhD is going to give the society, like societal impact of my thesis. Number two, whether I will be able to complete it on time. Number three, that I was thinking that what my PhD is going to add to my resume. That means value addition to my resume. And fourth, will I be able to get any funding for my thesis or not? So these were the four things that I was thinking while choosing my topic. And while I choose my topic, so ये चार चीज़ें मैंने टिक 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 करती गई. सबसे पहला तो सोसाइटी को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी मेरी थीसिस, और है मेरी थीसिस, विद प्राउड आई कैन सी दिस. सो डिसाइड हो गया टॉपिक, आई वेंट बैक, देन आई जस्ट जम्प टू माई गाइड, टू हिज ऑफिस, नॉट टू ऑन माई गाइड. इट वॉज लाइक मैं अपने गाइड के ऑफिस गया, आई वॉज लाइक सर टॉपिक हो गया, अब क्या करूँ? एंड ही वॉज लाइक मुझे क्या पता है क्या करना है. सो माई फ्रेंड्स, डोंट थिंक कि आपकी टॉपिक डिसाइड हो गया तो अब गाइड बताएगा क्या करना है. नो, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग. सो माई गाइड सेड स्टार्ट रीडिंग पेपर्स, एंड आई वाज लाइक कौन से पेपर्स? सो जर्नल कौन से, कैसे ढूंढने हैं जर्नल्स? सो फर्स्ट थिंग जो मैंने अडॉप्ट किया था वो ये था कि मैंने ना गूगल पे जाकर सर्च किया था. वो मैं भी अभी मैं वीडियो भी उसकी डालूंगी एंड में कि मैं किस तरह से गूगल पे सर्च करती थी अपना टॉपिक. मैंने वो सर्च किया एंड उसके बाद मेरे पास लिस्ट ऑफ पेपर्स निकले. कुछ पेपर्स अच्छे थे, कुछ बुरे थे, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि कौन से पेपर अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं. I would say not every paper which come on
Elsevier is going to be good for you, or not every paper which is not going to come on Elsevier is going to be a bad paper you. It depending on your topic कि आपका टॉपिक क्या है, उसके बेस पर ही अच्छा पेपर और बुरा पेपर आएगा. सो जब मैं कोई भी पेपर देखती थी, सो मुझे मेरे गाइड ने बताया था कि क्या क्या चीज़ें देखनी है. फर्स्ट वॉज द टाइटल, कि क्या जो टाइटल है वो मेरे जो सब्जेक्ट है या जो मेरी थीसिस है क्या उसके आसपास है. जैसे मेरा थीसिस था ऑन विमेन एम्पावरमेंट एंड रिलेटेड टू विमेन मैटरनल हेल्थ. सो जैसे चाइल्ड केयर आ गया, या विमेन प्रेगनेंसी आ गई, या प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर था, ये सारे मेरे पेपर से रिलेटेड थे. सो मैं ना इन टॉपिक से रिलेटेड सर्च करना शुरू कर दिया था एंड मुझे मिल गया. अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट आपको डुप्लीकेट रेप्लिका आप अपने थीसिस की ढूंढ पाएंगे, एक दो थीसिस शायद मिल जाए, बट नॉट मोर देन दैट. आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे और वो कीवर्ड्स आपको आपके रिसर्च पेपर में ही मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक देखा, मेरा टॉपिक ऐसा एज आई टोल्ड यू ये था, तो मैं कीवर्ड्स भी देखती थी कि चलो अराउंड आसपास इसके भी है. अगर मैटरनल नहीं तो पैटर्नल या पैटर्निटी लीव, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही रहा था. एंड इसके बाद मैं एब्स्ट्रैक्ट देखती थी. एब्स्ट्रैक्ट में आप ये देखोगे कि क्या जो रिसर्चर है वो क्या बोलना चाह रहा है, उसने इस पेपर में क्या फाइंड आउट किया है. सो ये इजी हो जाता था कि मुझे आइडिया होने लग गया था कि क्या ये मेरे से रिलेटेड है या नहीं है. बिकॉज व्हेन यू रीड अ पेपर इट टेक्स 2 to 3 hours टू जस्ट ग्रास्प कि उसमें लिखा क्या है. मतलब कई बार ना लैंग्वेज डिकोड करना भी मुश्किल होता है. मेरे लिए तो था, कुछ पेपर्स की लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, लेकिन जो वर्ड्स थे वो बहुत हैवी थे मेरे लिए, तो मुझे ना डिकोड करने में 2 से 3 घंटे लगते थे. सो माई गाइड सेड कि इतना टाइम नहीं है, वी डोंट हैव लाइक योर होल लाइफ टू स्पेंड ऑन रिसर्च, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट करो. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेपर से रिलेटेड है देन इट्स फाइन, इफ नहीं लगता है देन मूव अहेड. सो देन आई यूज टू सी कि एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड है. एंड कई बार एब्स्ट्रैक्ट में भी अगर नहीं समझ आता, कीवर्ड्स देखो कि इफ़ कीवर्ड्स लाइक चाइल्ड केयर है तो शायद ही आपको पेपर में हेल्प कर जाए, या कुछ समथिंग रिलेटेड जो आपका टॉपिक है अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स है वो हेल्प कर जाए. देन आई यूज टू स्किप इंट्रोडक्शन. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर रेड द इंट्रोडक्शन बिकॉज आई ट्राई टू इन द इनिशिएटिव्स, बट हर पेपर की इंट्रोडक्शन मुझे एक जैसी लगी. बस ये होता है कि लोग ऊपर नीचे इंट्रोडक्शन कर देते हैं, इंट्रोडक्शन इज सेम. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. Then I moved with the ROI. ROI is the most important thing to complete your PhD because आपको ना बेस मिल जाता है, आपको समझ जाता है कि इस दुनिया में लोगों ने उससे रिलेटेड कितना काम किया, हाउ मैनी पीपल हैव डन द सिमिलर काइंड ऑफ अ वर्क बिफोर यू, एंड what have they found out and what is their opinion. All these things are part of ROI. So मेरे गाइड का प्राइमरी फोकस था कि ROI पे फोकस करना है. So ROI was a very helpful tool and is a very helpful tool for completing your PhD. ROI के बाद I used to check the objectives कि objective क्या है. कई बार ना मैं बिफोर ROI मैं एब्स्ट्रैक्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव्स में चली जाती थी. क्या ये पेपर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एज आई टोल्ड कई बार एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं समझ आता, ऑब्जेक्टिव्स में देखती थी कि क्या मेरे ऑब्जेक्टिव और इनके ऑब्जेक्टिव में कोई लिंक है. अगेन रेप्लिका नहीं मिलने वाला है, बट मैं अगर मुझे थोड़ा सा भी लिंक लगता था मैं वो पेपर कंटिन्यू करती थी पढ़ना. ROI देख लिया. ROI कई बार बहुत डिफरेंट होता है, कई बार बहुत हेल्पफुल होता है, कई बार बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि कई पेपर्स में इतना सा ROI होगा, कईयों में बहुत ज़्यादा होगा. अगेन वो क्या वो आप रिव्यू पेपर पढ़ रहे हो, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, उस पर भी काफ़ी मैटर करता है. वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी. सो ROI पढ़ने के बाद आई यूज टू सी कि उन्होंने मेथड क्या यूज़ किया, दैट इज़ RM. रिसर्च मेथोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. RM हेल्प करता है कि अच्छा हमने इतने लोगों में ये आइडेंटिफाई किया है, ये प्रॉब्लम है. RM देखने के बाद कि उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया और क्या ये सेम मेथड में अपनी थीसिस में इसको रेप्लिका कर पाऊँगी, वो भी तब अगर जो क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्ट अगर उनके और मेरे ऑब्जेक्टिव सेम है. तो अगर डिफरेंट भी है और अगर मैंने मेथड यूज़ किया है, सो व्हाइल डिफेंडिंग माय थीसिस आई कैन से कि ABCD पेपर में इस पर्सन ने सिमिलर काइंड ऑफ वर्क किया था, इसलिए उन्होंने रिग्रेशन या कोई भी मेथड यूज़ किया, इसलिए मैंने किया. आप ये बोल सकते हो. ऑल्दो हर की थीसिस अलग है, एज आई टोल्ड यू, सबकी जर्नी अलग है, तो सबकी थीसिस अलग है और सबका करने का तरीका अलग है. सो इट्स अ वे ऑफ सेइंग. मेरे लिए हेल्पफुल था. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था. एंड
just trying to share my experience, because there are certain people who will be saying कि नहीं, she's lying, ऐसा कुछ नहीं होता है. Again, little disclaimer, that these are the things which helped me in completing my thesis. So RM देखने के बाद मैं रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन देखती थी, उससे ना मुझे एक आइडिया हो जाता था कि अच्छा ये चीज़ हो चुकी है. एंड कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स समहाउ हेल्प्ड मी इन बिल्डिंग माय इंट्रोडक्शन. ट्रस्ट मी, ये मेरी इंट्रोडक्शन और ROI जो मेरा खुद का था उसको बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, किसी का रिजल्ट एंड एज वेल एज डिस्कशन. बिकॉज जब आप किसी का ROI खोलते हो ना, आप उस पर्सन के ROI को खोलोगे, और वो कैसे खोलोगे, जब आप रेफरेंसेस में जाओगे ना, आपको रेफरेंसेस में पूरा पेपर मिलेगा. सो जस्ट यू नीड टू कट कॉपी एंड पेस्ट ऑन गूगल एंड आपको पेपर खुल जाता था. तो आइडिया हो जाता है कि उस पर्सन ने अपनी थीसिस में किस तरह से वो काम किया है. Right, so after completing my video, I have a guest lecture with school students on entrepreneurship. So I have only 2 to 3 minutes to carry on, and then I have to move to the presentation. So इस तरह से ना एक चीज़ जो मैंने अडॉप्ट की, ROI से ROI बनता गया. यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किसी एक पेपर के पढ़ने से ना मुझे 10-15 और ROI मिलते थे. बिकॉज हर पर्सन ना अपनी थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर में ना 10 to 50 मिनिमम से भी मिनिमम लिखता है. ठीक है. सो हर पेपर में कुछ ना कुछ अलग मेथड यूज़ किया होगा. तो मैं हर पेपर को खोलती थी और देखती थी कि क्या ये मेरे थीसिस से लिंक है या नहीं. इफ़ लिंक है तो मैं उसको रख लेती थी, अगर नहीं है तो मैं नहीं रखती थी. एंड मैंने एक और चीज़ भी की थी, मैंने ना एक नोटबुक लगाई थी. उस नोटबुक पे मैं हमेशा टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखती थी. एंड उससे मेरा खुद का ROI बनता गया कि मुझे क्या समझ आया, और उसी से उसी से ही मेरा इंट्रोडक्शन भी बना. सो ये करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज क्या होता है ना, कई बार आपको पेपर बहुत अच्छा लगा लेकिन आप उसे सेव करना भूल गए हो, या फिर वो सेव नहीं हो रहा है, सो आप कैसे पढ़ोगे उसको. सो नोटबुक कहते हैं ना, कोई भी चीज़ लिख कर करोगे वो ज़्यादा याद रहती है. सो ये मेथड मैंने अडॉप्ट किया, और इस मेथड की वजह से आई वॉज एबल टू राइट अ सिस्टमैटिक रिव्यू विच was again one of its kind while presenting my thesis, because my external said that I really liked how you have written the ROI, and for this I will always be grateful to my guide, because he is the one who taught me to कि जो ROI होता है ना, वो एक स्टोरी होती है, और स्टोरी में डायरेक्टली चिड़िया उड़ती नहीं है. पहले आप दिखाते हो कि एक पेड़ है, उस पेड़ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, इन घोंसले में चिड़िया और चिड़िया के बेबीज रहते हैं, एंड देन हाउ इट वर्क्स. डायरेक्टली चिड़िया नहीं उड़ जाती है. सो दिस इज हाउ आई डिड इट. In my next video, I will be talking more about a systematic review of literature. But if you have any questions for me, feel free to write. I would love to answer all your questions, and please keep on spreading my videos on my journey on PhD, because कहीं ना कहीं किसी न किसी को शायद मेरी जो videos हैं on PhD might help, and मैं और आप एक source of inspiration या source of thanks बन जाए किसी के लिए. So with this, I would like to say thank you, bye bye, take care, and please spread as much PhD knowledge and as much video of minds to the world, so that we can grow together and we can learn together. And if you have any questions, please write in the public chat. With this, tata, bye bye, take care, sayonara.